अक्टूबर का महीना है और 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक हमने देखा कि सेलिब्रिटी स्पेशली मेल सेलिब्रिटीज ने नेल पेंट किया। क्यों? इसके लिए हमने एक खुसूसी सेगमेंट रिकॉर्ड किया, आपको दिखाते हैं। बात करेंगे उस अहम मौजू की जो कि हम बारहा तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उस पर कोई इकदामात उस तरीके से नहीं होते जिस तरह से होने चाहिए। बच्चों के साथ ज्यादती, हम देख रहे हैं कि ये मुहिम, इस हवाले से एक मुहिम पाकिस्तान में लॉन्च की गई है जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया में थी, अब पाकिस्तान आगे चलते चलते पॉलिश्ड मैन, और अल्लाह करे कि इस मुहिम से कुछ फर्क पड़े। एग्जैक्टली और इस मुहिम का जिन्होंने आगाज़ किया, वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने उस प्लेटफॉर्म का कहना चाहिए कि यहाँ पर उसको लॉन्च किया। बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं और शोबिस सितारे हों, वो स्पोर्ट्समैन हो, जिस भी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक हो, वो अब इसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ पिक्चर्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कौन कौन इस मुहिम का हिस्सा बना और कैसे इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। साथ साथ हम डिस्कस आज ज़रूर करेंगे कि समझते क्या हैं हमारे जाने माने जो सितारे हैं कि इतना काम हो रहा है। वी हैव NGOs, हुकूमत भी इससे मुतालिक बात करती है, आगाही मुहिम भी चलती है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सेमिनार्स होते हैं, वी डू टॉक अबाउट इट, बट फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब मजीद वर्स्ट हो गई है। यस, मजीद वर्स्ट होती चली जा रही है। कंट्रोल करना है और लाजमी करना है। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वी हैव विद अस शनीरा अकरम, गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अदनान भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहा। नहीं, दोनों को गुड मॉर्निंग कहते हैं हम जनाब। स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम शनीरा। शनीरा, प्लीज tell me the story behind this, the Polished Man campaign, because it started from Australia, now you've launched it here in Pakistan. What is the story behind this Polished Man thing? Sure. In Australia, there's a group called Y Gap, and one of the members, Elliot Costello, he was in Cambodia, and he made friends with this little girl. Okay. And every day she'd paint his nails, and she would communicate with him through painting his nails. And he found out that she had been abused and was being abused after. And it really resonated with him because that little girl showed, so much resilience by making friends with an adult, even though an adult was, making her a victim of child abuse. So this nail painting, he wanted to do something. He said, how many children suffer in silence and don't say anything? Yes. So this really, really was very, very concerning. So he decided to start this NGO, and it caught on. Australia loved it. Everyone was wherever October comes, all the men, they get out the nail polish, they love it. They reckon it's great. It's a good talking point. It's something you can talk about in the office. You can talk about it at school. You can talk about it at home. And now it's become a bit of a common thing, Australians wearing nail polish, but it's caught on throughout the world. So, we have people like Chris Hemsworth and Liam Hemsworth, 2 Australian ambassadors. We have Harvey Specter from Suits. He was an ambassador, and also Zac Efron painted his nail for this cause. So there's a lot. It has gone internationally as well. But at the moment, Pakistan में बड़ा problem, child abuse के साथ. And I think we really need to do something about it. There's a lot of NGOs working on ground. Yes. And now these incredible heroes that we have, this team of men, how awesome did they look? Come on, you've got the best of the best there. True. We have your heroes. There are strong, masculine men that, come out and said, no more. We're not putting up with this anymore. And the nail polish was, a great talking point also because it got us talking about it. तो अदनान साहब, मतलब आप, मुझे लगता है इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब हमारी भाभी आई हमारे पास, उन्होंने हमसे कहा कि ये करना है, एंड मुझे से 1 सेकंड लगा हाँ कहने में, और उसके बाद जब ये मैंने कर ली है कैंपेन और उसके बाद मैंने अपलोड भी कर दी अपनी तस्वीर, तो बहुत से लोगों ने तारीफ भी की, बहुत से लोगों ने इसकी कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? ओके। आप नेल पॉलिश लगाएंगे यार? अब मर्द हमारा ये करेगा कि अब नेल पॉलिश लगा के लोगों को बताएगा कि ये काम सही है गलत है? तो मेरा ये सवाल है, क्या ये मर्दाना हरकत है जो ये बारबेरिक एक्ट हो रहा है? क्या ये मर्दाना हरकत है? क्या इसको हम मर्द कहते हैं? क्या इसको हम इंसान कहते हैं? मतलब बच्चों के साथ ज़्यादती किसी भी लिहाज से, बिल्कुल, चाहे जिनसी हो, वो चाहे कोई जिनसी हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो बुलिंग हो, चाहे तशद्दुद भी तो इस चीज़ में है ना। तो ये तो
कहीं से एक्सेप्टेबल है जस्टिफाइड नहीं, है ही नहीं। जस्टिफाइड ही नहीं है। मतलब हमारी उनसियत उस परिंदे से, उस जानवर से हो जाती है जो हमारे घर में होता है। तो बच्चा ये कैसे हम सोच सकते कैसे हैं? मतलब ये कहाँ से ये सोच उजागर होती है कि ये हरकत भी हो सकती है एक इंसान और एक मासूम के साथ जिसको पता भी नहीं है जिसके साथ क्या होने वाला और क्या हो रहा है, जिसको कोई इल्म नहीं है। एक सिलसिला तो ये हो गया। दूसरा जो सिलसिला है जो मैं इस मुहिम के साथ जुड़ा हूँ कि ये इन बच्चों को आप मजलूम ना कहें। दे नॉट विक्टिम्स। जो सर्वाइवर्स हैं दे नॉट विक्टिम्स, वो मजबूत हैं। बिल्कुल, उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दोबारा खड़े हो सकते हैं और वो बात करना चाहते हैं। तो हमने उन बच्चों को ये तसल्ली देनी है, उनका साथ देना है, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाना है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आओ, बोलो क्या बात, क्या है, वजह क्या है, ताकि उसकी सज़ा उस आदमी और उस शख्स तक पहुंचनी चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाना है। एक ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकालना है इनको। एक जो ज़िंदगी के जो नशेब व फराज है, जो ज़िंदगी एक मामूल तौर पे एक आम बच्चा जो बिता रहा है, उसी तरीके से उसको भी हक़ है। तो उसकी ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ ज़्यादती करना, किसी भी हवाले से, जिनसी हो चाहे मेंटली हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रू। तो ये हो ही नहीं सकता कि बहैसियत बाप, मेरे भी 3 बच्चे हैं और मेरे ख्याल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं। बच्चे सांझे। मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं इस मुहिम में अगर अच्छाई की तरफ ये जा रही है तो क्या मुझे अगर सारी उंगलियों पे डजंट मैटर लगाना पड़ा तो तो आप मैं सारी सारी उंगलियों पे उंगलियों पे लगाऊंगा। और अगर मुझे एक उंगली पे लगा के किसी दावत में जाना पड़ा तो वो भी करूंगा मैं। सो द पॉइंट इज टू color your nail is to get this awareness. I want people to ask me why you wearing this nail color. So that you can talk about it. I can talk about it. So this is a basic point of a conversation regarding this issue. Right. Shanira, do you think? Just to answer that, that's incredible what he said, and it's exactly to the point. You know, the only crime here is not wearing nail polish. The only crime is not talking about what we need to talk about. Bilkul. Because the silence is making children, I mean, Adnan just said, you know, they're not victims, they're survivors, Yeah. but they are victims if we don't say anything. Yes. So it's our fault if we don't say anything. We're the adults, we run the country, this is how it is. It is our fault, you're absolutely right, but when we see, we have NGOs, and when we see, we all will talk about it, we conduct seminars, like we all are sitting here and we're talking about it on a national television, but still the situation is not getting under control. Shanira, what do you think? What is the reason behind this? I don't think that, what I think is now there's more reporting on it. So it seems like there's so much more. Okay. I think that's kind of a good thing that there's more reporting now. Because 8 years ago when I came here, There was no reporting. nothing. We went on morning shows to talk about hair and makeup. We were not talking about child abuse. What is the next step now? Reporting is one step, we're talking about it, that's the second step, but what's the next step? I think it all goes hand in hand. The NGOs are working on the ground. There are incredible people and NGOs out there working every day to save the lives of children and infiltrate people's homes and, register FRIs and FIRs. I never get that. FIRs for cases and getting people speaking, which is great. And also finding children that do go missing. There are so many people I'm working with also that are like that. I think the authorities, we need to take a much stronger approach to penalties and capturing these perpetrators. True. But we are doing our job. We are all doing our job, especially the celebrities of this country and the sporting stars. They're all talking about it. I think now it's your turn, everyone out there. Yeah. You know, it's your turn to start talking about it with your children. If you're a parent, your job, your one and only most important job is to protect the your kids. child. Generally, ये बड़ी observation है हमारी. हम कभी किसी मॉल में जाएं, किसी गैदरिंग में जाएं, जिससे जान पहचान भी ना हो, बच्चा हमारा लेकिन कोई प्यार से उसे गोद में बिठा ले, कोई प्यार से उसे किस कर ले. हमें ये चीज़ें डिस्करेज करनी है और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. डू यू थिंक दैट? आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि शायद ये मेरे
भाई सुने भी, मेरे सगे भाई, मेरे बच्चों को उनकी गोद में बैठने की इजाज़त नहीं है। ओके तो ये इतना क्लियरली बता दिया है कि ये नहीं है, एंड दे विल नॉट माइंड दिस, बिकॉज हमने भी ऐसे ही उनसे ही सीखा है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। मतलब वाई डू यू वांट टू एग्जैक्टली किस हिम, वाई डू यू वांट टू किस हर? वो चाहे छोटा सा बच्चा है लेकिन नहीं। द मोस्ट यू कैन डू, हाथ लगा दो, हाथ पे प्यार कर दो, गाल that's it. खींच लेते हैं। नहीं वाई, अब चलिए देखिए, मैं Why उस able सोच to को नहीं touch? समझ रहा। कुछ जेनुअली भी करते होंगे शायद दादा लेकिन फिर दादी हम- नाना नानी, बट देन यू नो differentiate नहीं कर अनफॉर्चुनेटली ये देखें माशरा नहीं बदलता, माशरा एक जैसा होता है, लोग बदलते रहते हैं। तो ये जो लोग हैं, मैं मजबूर हो गया हूँ, ये जो मेरे इर्द गिर्द जो हरकत हो रही हैं उसकी वजह से शायद मैं वो जेन्युइन टच भी नहीं शायद समझ पाऊंगा। यस तो मैं आई विल बी मोर केयरफुल, बिल्कुल ऐसे। यू नो, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने And पड़ते also, हैं। while we're here, that we're talking about, there's so many different types of abuse. You know, there's a bit of a spectrum, the grades to types of abuse. That you know, you have everything from psychological, emotional, sexual, physical. These are all different types of abuses. There's someone an uncle that kisses you a bit too close on the cheek, Yes. or a touch you don't like, compared to children that are actually. We're finding them on dumpsters of rubbish, you know, at such, Oh, yes. it's ripping our hearts out. There's different types. So this is what we need to talk about. This is what we need to get out in the open. This is what these gentlemen are doing. Yes, that's what we all are doing. And how can me and Mehak be the part of this? First of all, you can paint your nail. Sure. Should I do it myself? I think so. It's not hard. I reckon guys secretly like doing it. चले जी, हम भी इसका हिस्सा शिप बनते हैं। लगानी आती है ना? बेगम के पैरों पे लगाइए कभी। मैंने हाथों में भी लगाया, आपने सिर्फ पैरों का तस्करा किया। मैं पैर दबाता तो हूँ। थोड़ा सा इसको साफ कर लें, बहुत ज़्यादा है। ये नान भाई को देखा, सारा पता चल गया। Why don't you paint your thumb? Then you be like thumbs Okay. up. See, this is how you do it, guys. Take a Wow. look. Do it and be the part of this campaign, polished man. मैंने And कितनी this- अच्छी और नीट लगाई है। ये मैंने बताया था। हाँ, मैंने बताया था। Mashallah. Very good. Well done. Thank you. We See, all we- should do it because जब हम ये करेंगे, ठीक है, अदनान भाई ने बड़ा सही कहा। ये करने का मकसद शायद ये भी है कि लोग फिर बात करेंगे, पूछेंगे लोग कि आपने क्यों ये किया। तो आज मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाऊंगा और जब लोग मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं बात कर पाऊंगा। I'll be able to talk about this कि why I've done that. That's right. And if the world's best bowler, the world's best boxer, Yes. the world's best hockey and tennis, you know, like if they're all doing it, Why not us? देखिए, Why not Come on, सबसे everyone of us? पहली Thanks. बात, अगर आपसे कोई ये पूछे और ये कहे कि ये मर्दाना नहीं है, तो उनसे सवाल कीजिएगा, क्या वो जो हरकत हो रही है वो मर्दाना है? बिल्कुल, वो तो इंसानी हरकत भी नहीं तो है। बस ये पूछ लीजिएगा उनसे, उसका अगर जवाब होगा तो फिर आगे बात होगी। आगे बात होगी। अदनान भाई, thank मैं you. एक और जी, चीज़ please, आपको मैं please. बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बचपन में मैं ग्राउंड्स में जाता था खेलने के लिए, ऐसा नहीं कि वहाँ हरकतें नहीं होती थी, ओके, और उसका खमियाजा ये है कि हमने बात नहीं की, खामोश रहे ना। खामोश वो रहे। चुप, जुल्म जो वो पर चुप बर्दाश्त थी ना, वो ले बैठी। चाहे वो कहीं भी आप चले जाएं, चाहे आप बसों में हो, बिल्कुल स्कूल ऐसे ही। से वापस आ रहे हो, चाहे आप वो क्रिकेट ग्राउंड में हो, चाहे खेल रहे आप हो, खेल रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो, कुछ भी हो, तो ये हर जगह होता रहा है। अब वक्त आ गया कि हमें बोलना है, हमें उन बच्चों को बताना है कि आप बोलें ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ, और इसमें कोई गलती आपकी नहीं है, बस। and if there's any of those uncles out there or those men that are insecure with their masculinity and they're thinking this is a really silly campaign with your nail being, you know, painted, I want the youth out there to come and engage this program. I want them to paint their nails. I want to show these uncles, no, it's not a silly campaign. It's getting people out and it's protecting children. It's saving lives. And inshallah, it will grow bigger and better. And Inshallah. इंशाल्लाह। Of course. इंशाल्लाह। And through your program, I just want to even convey this message to all the universities and the schools. We are willing to come and be there and counseling, teaching, telling, whatever they want to know. And we about will be it. doing that, you know, engaging. Each ambassador has taken on a role and they will be engaging. And like I said, join with us, paint your nails, send it to us,
change your DP, show us that you want us to talk about this more. Tell us you want us to come to your schools, your universities and talk with you about this. Great. We want to And make they this all- campaign big. They all want to see you in school, college, universities. तो ज़बरदस्ती के तो ऐलान इस प्लेटफॉर्म से हो गया है। अदनान भाई और शनीरा भाभी वो आना चाहते हैं और जहाँ पर भी आप बुलाएंगे इस इशू से रिलेटेड बात करने के लिए पहुँचेंगे फ़ौरन। ये बहुत ज़रूरी है। तो do paint your nail and put your DPs on और बिल्कुल बताइए ताकि इस पर मजीद बात हो सके। थैंक यू सो मच शनीरा, आप साथ मौजूद थी। थैंक यू अदनान भाई साथ मौजूद थे। आप एनीवेज क्विकली बढ़ते हैं आगे, बल्कि एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। ऐसी वीडियो जिसमें गाड़ी लग ये रहा है कि बगैर ड्राइवर के सड़क पर दौड़ती चली जा रही है। ये भारतीय रियासत तमिलनाडु में ये वीडियो बनी है। सड़क पर बगैर ड्राइवर के गाड़ी नज़र आई जनाब। वीडियो किसी ने बनाई, फिर वो सोशल मीडिया पर डाली, वायरल हो गई। देखा जा सकता है कि जो ड्राइविंग सीट है उसमें कोई मौजूद नहीं है, बिकॉज यू कैन सी द स्टीयरिंग, और दूसरी जो सीट है फ्रंट सीट, उस पर एक शख्स बैठा हुआ है। ये भी हो सकता है कि इस तरफ स्टीयरिंग ना हो, कुछ और हो, और असल स्टीयरिंग उस भाईजान के पास ही हो। क्या है लेकिन इसको देख के ना खौफ आ रहा है। चलिए जरा देखते हैं कि है क्या एक्चुअल। हाँ, ये मुझे लगता है किसी और तरीके से कंट्रोल हो रही है गाड़ी, है ऐसा ही है। या हो सकता है छोटा स्टीयरिंग उसके पास हो, बस कर दें या छोटे कद का कुछ ड्राइव कर रहा हो। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। खैर, गाड़ियों की बात हो रही है तो एक ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जो कि जिसको सयाहत की समझा जाता है, और एक ऐसी गाड़ी है ये, इसके अंदर सारी चीजें मौजूद है। कमरा बुक कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसके अंदर किचन भी है, इसके अंदर वॉशरूम भी है, इसके अंदर ठंडा गर्म पानी दोनों है, नहा भी सकते हैं आप। कितनी जबरदस्त है ये। गीजर भी साथ है। गीजर भी साथ है। खैर, हमने देखा कि जब आप कहीं जाते हैं सैर करने के लिए तो ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये मिस हो गई है, वो मिस हो गया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब एक है कैरवन वैन है, और ये एक ऐसी वैन है जिसे एक पिंडी के नौजवान ने तैयार किया है और किसी भी आम गाड़ी के साथ ये आसानी के साथ लग सकता है। मेरा ख्याल है महक, पहला सवाल हम इनसे करेंगे किराए पे दे रहे हैं तो कितने में, हाँ, ताकि अगर हम घूमने का प्लान बनाए पूरी टीम तो हम लेकर चले जाएं इसको। ठीक है, यानी हम आपको लेकर नहीं जाएंगे हम, लेकिन बस वैसे ही बॉयज डे आउट होगा। बिल्कुल आपको हम लेकर नहीं जा रहे। ठीक है, यही हमने जानने के लिए राबता किया है। मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा मंसूर। अस्सलामुअलैकुम मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? इस वैन की तफसील बताएं, क्योंकि शुएब भी बेताब है जानने के लिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आप इसको क्या किराए पे दे रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई आसानी है? प्लीज़ ज़रा बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। ये कैंपर ट्रेलर है, इसको टीयर ड्रॉप ट्रेलर कि जैसे इसका नाम है टीयर ड्रॉप, तो इसकी शेप भी वैसी ही होती है। इसमें आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं हॉट शावर के, फुल किचन है जिसमें सिंक है, कूलर बॉक्स है और बर्नर स्टोव है, आपके पास शेल्फ दी जा रही है, आपका स्पून रैक है और आपके पास वाटर की सारी फैसिलिटी और कैबिनेट्स हैं स्टोरेज के लिए, और एक बड़ी अच्छी एमएनसी की खूबसूरत सी लाइट दी जा रही है। ये आपका इसमें आप आइस डाल देते हैं और इसमें जो आप अपनी चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। ज़बरदस्त मंसूर। मुस्तफ़ा, और ये इसके ग्रे वाटर टैंक और वाटर टैंक। ओके मुस्तफ़ा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने हमें साथ साथ सैर भी करा दी, लेकिन मुझे बताएं कि ये बनाई कैसे, किसकी मदद ली, आइडिया कैसे आया कि आपको ये करना है? आइडिया तो शुरू से ही था जहन में, 10th में था जब डायग्राम्स बनाता था। तो बस ये था कि प्रैक्टिकल तरीके से मतलब समझ नहीं आ रही थी इसको बनाया कैसे जाए। तो ऑस्ट्रेलिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हम वहाँ पे ट्रेलर्स में सफ़र करते थे फॉर मंथ्स। तो जब मैं वापस आया तो ये था मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने उसको मिलाया अपनी मार्केट की, जो मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1 ईयर लगाया, तो उस एक्सपीरियंस को मिला के फिर मैंने ये बनाना शुरू किया। ये MDF शीट से बना हुआ है और इसकी फिर एपॉक्सी से बॉन्डिंग करके और फिर एपॉक्सी पेंट करके वाटरप्रूफिंग करके सारा बनाया गया। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं किराए का, ये लिए अभी फ़िलहाल तो नहीं दे रहे, हम सिर्फ मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। तो अभी बात चल रही है, लोग बल्क में लेना चाह रहे हैं, अगर वो आगे रेंट आउट करते हैं इन फ्यूचर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप हाँ इसकी लागत भी बता दें, और दूसरा ये जिस तरह कि आपने बताया जिस मटेरियल से बनी है, तो गर्मी सर्दी का फिर क्या सीन है कि इसके अंदर कोई AC भी लगा हुआ है या कोई हीटर भी, अगर बहुत ज़्यादा सर्द आप इलाके में जा रहे हैं, बहुत गर्म इलाके में जा रहे हैं आप?
इसकी लागत जो है 8 लाख पे लॉन्च की गई थी, लेकिन इनिशियल जो है कंपनी 50,000 डिस्काउंट दे रही है, तो 7,50,000 रुपये अभी हम दे रहे हैं। और इसके जो गर्मी सर्दी की ये इंसुलेटेड है, ऑल साइड्स इसके इंसुलेशन हुई हुई है थर्मोपोर की, इसकी वॉल्स में, इसके फ्लोर में और इसके गैली हैच में हर जगह इसकी इंसुलेशन हुई हुई है। और एसी जो है वो एक ऑप्शनल है, वो इसके साथ नहीं आ रहा, लेकिन पोर्टेबल एसी लग सकता है इसमें, और वही जो है वो हीट भी देता है सर्दियों में और कूलिंग करता है गर्मियों में। अच्छा मुस्तफ़ा, इज इट पॉसिबल अंदर भी जाएं और हमारा कैमरा भी अंदर जाए, हम जरा अंदर से भी देख पाएं कि अंदर कितनी स्पेस है? जी जरूर। ओके, सो यू गोइंग इनसाइड? अंदर लो भाई, शेब आप खरीद ही लें। मुझे भी यही लग रहा है। तो वाह भाई वाह, जबरदस्त। अभी भी मेरे मतलब है कि वो अगर आप चेक करें तो हो जाता है। इसके इस तरफ भी डोर दिया गया है, दोनों साइड पे विंडोज हैं, अंदर भी कैबिनेट्स हैं, स्टोरेज है, काफी अच्छा मतलब बंदा दो लोग इजीली जा सकते हैं। यही पूछने लगा था मुस्तफा, एरिया में जाता है जहाँ पे होटल्स नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज हमने देखा मुस्तफा कि जो पीक सीजन होता है, स्पेशली अगर हमने नॉर्थ ट्रैवल करना और वहाँ पर होटल्स नहीं मिल रहे होते, बुकिंग नहीं हो रही होती, और ऐसे में कोई अगर न्यूलीवेड कपल जाना चाह रहा है, कोई दो दोस्त जाना चाह रहे हैं और कोई फैमिली जाना चाह रही है, और वो अगर ये ले लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, बिकॉज ज़ाहिर अभी रेंट पर नहीं मिल रहा, बट कोई खरीद कर रेंट पर दे भी सकता है, ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है। तो ये बड़ा आपको लगता है कि सहूलत से हम इस्लामाबाद से नॉर्थ यानी नारान कागान लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? जी जी, इसका वेट अराउंड 450 kgs है और ये किसी भी गाड़ी के साथ जा सकता है। अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं तो आपको थोड़ा अच्छी गाड़ी 4x4 रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब माउंटेनियस टेरेन्स है। और हमारे फ्यूचर मॉडल्स जो आ रहे हैं वो उस कपल्स के लिए वो दे आर बेस्ट सूटेड, बिकॉज उसके अंदर होगा टॉयलेट, उसके अंदर शावर होगा, खड़े होने की जगह होगी, वो पूरा एक फैमिली पैकेज। वो जो फैमिली पैकेज की बात कर रहे हैं मुस्तफा, वो कितने में बनेगा? वो जो बड़ा वाला 2 वीक्स है वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो बता देंगे। तो आपने बताया कि इसकी कीमत तो बताई, लेकिन अगर बड़ा बनाते हैं, उसकी प्राइस अभी सेट नहीं की, लेकिन डेफिनेटली इट वुड बी अबव $1 million मार्क। ठीक है। अच्छा मुस्तफा, लास्ट में एक बात बता दे, बिजली का क्या सीन है? लाइट तो नहीं जाएगी? जनरेटर रखा हुआ है? नहीं, बिजली इसके ऊपर दो 80 वॉट्स के 160 वॉट्स इन टोटल इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि आपका चार्ज करते हैं। ओके मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे और हमें दिखा रहे थे इस गाड़ी की खुसूसियात, और शुएब मुझे लगता है आपको इसको खरीद लेना चाहिए और आगे रेंट पे दे देना चाहिए। मुझे आप मुफ्त में दीजिएगा, मैं इसकी पब्लिसिटी भी देखिए मैं खरीद लूंगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप टीम से ये कहेंगे कि मुझे छुट्टी दें ताकि मैं इस कैरावान को लेकर जाऊं। मैं ये अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि दरखास्त कर दूंगी। ठीक है ये पूरी हमने दिखाई है गाड़ी आपको, आप मुस्तफीद हो सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी रेंट का कोई, लेकिन बहरहाल ये बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आप ये लेकर आप इतने ज्यादा रेंट देते हैं होटल्स के जाके, तो आपको आई थिंक एक ही गाड़ी प्लस मैं फॉर एग्जांपल अगर बड़ा वाला आप सेटअप ले लेंगे, यू आर अ फैमिली पर्सन और मियाँ बीवी हैं, 1-2 बच्चे हैं, आराम से आप जाएं, उसमें आपको कोई होटल की जरूरत भी नहीं है। प्लस कोविड के दिनों में जनरली भी हम अवॉइड करते हैं बच्चों के साथ किसी और जगह पर रहना, किसी और होटल के रूम को बुक कराना, तो ये तो अपना होगा, पर्सनल स्पेस होगी, आप इसे बायो सिक्योर रखें। और अच्छी बात ये कि आप इसको अपनी डिमांड के मुताबिक बनवा सकते हैं, और फिर बार-बार सामान गाड़ी से निकाले कहीं और नहीं रखना, यहीं पे रखना है। एनीवेज जी बहुत ज़्यादा बातें मैं इस पे कर रहे हैं, बिकॉज़ हमें खुद अच्छा बहुत लगा ये। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें लोग ज़ख्मी होते हैं, जैसे कि हम मस्कन चुरंगी की बात कर रहे हैं, और इसी तरह का एक वाक़या, इससे मिलता जुलता वाक़या मैं कह देता हूँ, एक हादसा कह देता हूँ, लाहौर में भी हुआ था। मुआज़ जाहिद वो उससे मुतासर हुआ था, उसका एक बाजू ज़ाया हुआ था, उसकी ज़िंदगी बदल रही थी, मुश्किलात की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोच लिया था कि जो मेरे पर एक बोझ पड़ा है, मैं इसको उठाने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह ने उसको हिम्मत दी। उसकी हिम्मत की आज हम बात करते हैं। हमने उनके साथ एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया बिकॉज ही इज़ अ म्यूजिशियन, और जब बाजू ज़ाया हुआ उसके बाद कैसे उन्होंने कूप अप किया, कैसे वो स्टिल गिटार बजाते हैं, आपको दिखाते हैं और आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। और अब बात करेंगे ऐसे हिम्मत की जिसको देखने से दूसरों को बहुत हिम्मत मिलेगी। एक ऐसे मौसीकार से आपको मिलवाएंगे जिनकी ज़िंदगी ने कई रूप देखे,
कई ऐसी तब्दीलियां देखी, कई ऐसी चेंजिंग्स देखी अपनी ज़िंदगी में कि अब वो इतने बाहिम्मत हो चुके हैं कि अगर उनके जिस्म का एक अहा मज़ा उनके साथ नहीं है ना शोएब, तो वो फिर भी दुनिया को हिम्मत का पैगाम दे रहे हैं। बेशक आप बात कर रही हैं लाहौर की रहायशी माज जाहिद की। एक एक्सीडेंट हुआ था, चंद माह पहले इनका दायां बाजू ज़ाया हुआ था। ही इज़ एन IT प्रोफेशनल बट म्यूजिशियन एज वेल। कराची वो आए, मसनूई खुदकार बाजू ने लगाया गया। पर उम्मीद हैं वो कि फिर से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उनकी हिम्मत पर भी आज हम बात करेंगे, उनके शौक़ और लगन की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब ये खुदकार बाजू लगा, द आर्टिफिशियल वन, तो उसके बाद उन्होंने गिटार कैसे बजाया, ज़रा दिखाते हैं। ये सुनकर और ये देखकर यकीन ही नहीं आता कि कोई हादसा भी हुआ था। माज इज़ विद अस टुडे। माज, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। माज, मुझे पहले ऐसे वेव करें उस हाथ से। ये ले। वाओ, जबरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग। माज, वीडियो देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये कोई आर्टिफिशियल आर्म आपको लगाया गया है। बिल्कुल नेचुरल आप उससे बीट, मैं कहता हूँ, गिटार को ऐसे बजा रहे हैं। ज़बरदस्त। बेसिकली ऐसा है कि इसको कैरी करने का वो बस एक वो वे है। ओके। क्योंकि एक बड़ा ही एडजस्टमेंट उसकी बड़ी अच्छी है, पूरा साइज एक्यूरेट है, तो इस वजह को यूज़ करना बहुत इजी है। ठीक है, तो इसीलिए वो नेचुरल फील ही आती है। ओके, ठीक। अच्छा मुआज, जैसे कि हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं, आपने शेप को हाथ हिला के भी दिखाया कि भाई मैं जो हूँ ना बिल्कुल फिट हूँ और अब जो है वो मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लगन के साथ। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं और बात हो जाए उस इंसिडेंट की जिसकी वजह से ये चीज़ आपको देखनी पड़ी, क्या हुआ था, क्यों आपको इस तरह से हाथ से महरूम होना पड़ा? वो ऐसे था कि मुझे करंट लगा था 11,000 वॉट्स का। ओके। तो हुआ ऐसे था कि वायर पे मेरा हाथ लग गया था। बैल्कनी में मैं खड़ा हुआ था तो हाई टेंशन वायर करीब थी, तो अंधेरे में पता नहीं लगा, हाथ लग गया। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ऐसे कि मेरी बैक ग्रिल के साथ लग गई, तो करंट जो है वो बॉडी में से बैक से ग्रिल से निकल गया, ग्राउंड हो गया, और लोगों ने देखा इवन। तो वो वाला टाइम जो था वो तो काफ़ी एक थोड़ा सा उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था, बट एक रियलाइजेशन हुई कि ठीक है, बचत हो गई है। तो द थिंग इज़ के जब वापस तब मैं फैसलाबाद में था इवन, तो फिर जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, लाहौर आया, डॉक्टर को चेक वगैरह करवाया, तो दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि हाथ बच जाए किसी तरीके से। माइनर सर्जरी की उन्होंने, बट जो था पॉइजन जो था वो बॉडी में फैल रहा था थ्रू ब्लड, तो वो कहीं भी जाके क्लॉट कर सकता था। तो उन्होंने यही रिकमेंड किया कि एम्पुटेशन ज़रूरी है क्योंकि लाइफ थ्रेट बन गया। ओके। बेसिकली मेरा राइट हैंड मेरी लाइफ थ्रेट बन चुका हुआ था, तो इसलिए यही था कि लाइफ तो बची है, तो इसलिए फिर रिमूव करना पड़ा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ओके जी। मुआज, लेकिन जिस तरह आपने बताया, आपने तो बड़े आराम से बता दिया, सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे माशाल्लाह से मुस्कुराहट है। अल्लाह ये मुस्कुराहट भी कायम रखे महक। लेकिन जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो 11,000 वोल्ट्स का करंट बॉडी से पास होना, ये इस पर बात करना इतना मुश्किल है, इसका सोचना इतना मुश्किल है। उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। उस वक्त और कोई आसपास था मुआज जिसने, आप कह रहे हैं ना, देखा? जी उस वक्त आसपास कौन था? क्योंकि आप कह रहे हैं वो लोगों ने देखा। जी, क्योंकि मैं बैल्कनी में था, वहाँ पे हम लोग फ्लैट थे बेसिकली, फ्रेंड्स वगैरह मेरे साथ थे वहाँ पे। बेसिकली मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए आता जाता रहता हूँ, मैं मूव करता हूँ काफ़ी ज़्यादा विद इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर से फिर क्या कहते हैं फैसलाबाद, मुल्तान, आना जाना लगा रहता था। तो ये फैसलाबाद बेसिकली में गया हुआ था, तो हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं फ्रेंड्स वगैरह मिलके, तो ये प्रोजेक्ट के लिए ही गया हुआ था। तो बस वहाँ पे मौसम एंजॉय करने, उस दिन मौसम थोड़ा सा अच्छा था। इट्स अराउंड 3 मंथ्स अगो, 3 महीने पहले इवन हुआ ये, 4 जुलाई। अच्छा, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा माज। इस 3 महीने में आपने एक ऐसा शौक बर्दाश्त किया है, और उसके बाद ज़ाहिर है बड़ा वक्त लगता है हॉस्पिटल जाना, फिर ट्रीटमेंट होना, फिर रिकवर करना, फिर ये लोकेट करना कि अब इससे कैसे आगे निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर बायोनिक्स की तरफ जाना। ज़ाहिर है आपने तो ये बड़ा क्विकली सारा कुछ कर लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये जो आप इस तरह से ना लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, टेंशन में भी आ जाते हैं, इस चीज़ से, इस माहौल से आप कैसे निकले? बेसिकली ऐसे था कि जब करंट लगा उस वक्त भी सिचुएशन ऐसी थी कि पहले तो यही फील हुआ कि बस गए, लेकिन जब वहाँ पे ऑन द स्पॉट जब फील हो गया कि नहीं अभी बचत हो गई है, तो आफ्टर द इम्पुटेशन इवन जब बाजू की उन्होंने जब रिमूव किया, तो उसके बाद फिर यही था कि यार अभी एक हाथ बच गया, दोनों टांगे बच गई हैं, आंखें बच गई हैं, दिमाग चल रहा है,
सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। इसने आपको हिम्मत बस दी। एक यही चीज़ थी जिसने कोप अप करवाया इस चीज़ से कि यार अभी एक ही चीज़ गई है, बाकी चीज़ें अभी हैं ना, बच भी तो गए हैं, अभी जिंदा भी बच गए हैं, सारी चीज़ें भी, ऑर्गन्स भी बच गए, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह ने यहाँ तक लेके आए हैं वो आगे भी इंशाल्लाह लेकर चले जाएंगे। बिल्कुल बेशक। और माज, इसमें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही? आपने खुद तो हिम्मत की, लेकिन होता है ना कोई फैमिली, कोई फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाते हैं। मुझे मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, लाइक हर बंदे, लाइक फ्रेंड्स ने, भाइयों ने, पेरेंट्स ने, कजन्स ने, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ साथ वहाँ पे रहे हैं, सब लोग वहाँ पर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी, इवन आफ्टर द हॉस्पिटल इवन। लेकिन माज, आई एम श्योर अच्छा सा सपोर्ट भी था। माज, आई एम श्योर ये जो हिम्मत आपको मिली, फैमिली से मिली, भाइयों से मिली, पेरेंट्स से मिली, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी वालिदा आपको हिम्मत देती होंगी, लेकिन अकेले में रोती होंगी। वो वक्त उन्होंने बहुत मुश्किल देखा होगा, आपको पता चला होगा। एग्जैक्टली उन्हें होता था, वो फील करती थी, बट मैं बेसिकली ये कहा कि यार ठीक है, आपके सामने हूँ, सब खैर है, कुछ नहीं होता, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं। ठीक है, यानी जान है तो जहान है। अब तो खुश होना बनता है महक, द वे ही वेव्ड अस। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक, तो अब हम जरा आपके शौक की तरफ आ जाते हैं। मौसीकी का शौक कब हुआ, कब से आप गिटार बजा रहे हैं? गिटार तो मैं ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड से बजा रहा हूँ। ओके। तो काफ़ी देर पहले से बजा रहा हूँ। उसके बाद फिर लाइक यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद भी इवन काफ़ी गिग्स किए हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक किया है। फिर क्या कहते हैं, इवन ये इंसिडेंट जब हुआ तो कोरोना था, तो इवेंट्स वगैरह भी नहीं हो रहे थे, तो काम शाम भी साथ साथ बस चल ही रहा था, जोर लगा रहे थे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। सही सही। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद फिर यही था कि यार प्ले तो करना है और इंशाल्लाह वापस आना तो है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बायोनिक, थैंक्स टू बायोनिक्स, ये बेसिकली कंपनी कराची में ही है। बिल्कुल, बिकॉज हमने बायोनिक्स कंपनी से मुतालिक बहुत खबरें शेयर की हैं। हमने तो आयरन मैन जो बच्चा था और सबसे पहले उसकी बात की थी, और अभी आपका वो बाजू देख के मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वी हैव अनदर आयरन मैन विद अस। सो बेसिकली ये वही ऐसा ही है, क्योंकि उनके थ्रू ही उनको रिसर्च करते रहे तो पाकिस्तान में बेसिकली बायोनिक्स ही थे जो ये काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल लिम्ब के ऊपर, जो कि बायोनिक वेटलेस एक चीज़ बना रहे हैं और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव सी चीज़ बना रहे हैं। तो इवन जब ये भी उन्होंने मुझे टेस्ट करवाया, मैंने इसको पहना, मैंने इससे जब प्ले किया तो इससे भी प्ले हो गया गिटार। मैंने कहा बस ठीक है, इंशाल्लाह खैर करे। मैं इससे पहले कि आपसे कहूँ, क्योंकि गिटार भी साथ है, आप भी साथ है, तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि अभी लाइव भी गिटार आपसे कहेंगे कि बजाएं। लेकिन इससे पहले मुझे बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है 3 मंथ्स में ये सब कुछ हो चुका है, एक इंसिडेंट भी हो गया, फिर आपने वो उस फेज से बाहर भी निकला है, फिर बायोनिक से कांटेक्ट भी हो गया, ये आर्म आपको लग भी गया, प्रैक्टिस भी हो गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये आर्म लगने और प्रैक्टिस से मुतालिक बताएं उन लोगों के लिए कि जो इस तरफ अगर आना चाहें, कोई भी उनका अगर आर्म है या लेग है और बायोनिक से रब्ता वो करते हैं और वो चाहते हैं कि लिम्ब उनका अटैच हो जाए इस तरीके से, एक आर्टिफिशियल वन, तो कितना ये ईजी प्रोसेस है कि कितना वक्त लगता है इसका लगना और उसके बाद प्रैक्टिस करना? बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आप एज पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आपके साइज पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके सेंसेस पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके माइंड कंट्रोल है, माइंड से मसल्स के सेंसर से आगे ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो द थिंग इज के डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना जल्दी उससे दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, और कितनी जल्दी आपकी जो वर्किंग है वो, क्योंकि उनको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, वो लोग आपका वर्किंग प्रोसेस जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। बट जहाँ तक प्रैक्टिस की बात आती है, तो प्रैक्टिस की बात ये आती है कि आप उसके साथ कितनी जल्दी वही दोस्ती का ही वर्ड अच्छा होगा, कितनी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं कि आप उसके साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन की जो चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकें, उनको आप कर सकें। इवन अभी ये इसमें और अपग्रेड्स भी हो रहे हैं और फर्दर इसमें और इंशाल्लाह वो लोग वर्किंग कर रहे हैं। मेरा इंशाल्लाह रिसेंटली दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगेगा कराची बायोनिक्स के पास। आपने तो हमारे पास भी आना है इंशाल्लाह, एक्सपेक्टेड है। कराची आएंगे तो हमारे पास भी आना है मुआज़। ठीक, अच्छा मुआज़, जैसे रिश्ते की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो मौसीकी आलात से आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ गया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप 8th क्लास से जो है वो गिटार बजा रहे हैं, तो इस हादसे के बाद रिश्ता जोड़ना उतना आसान था जितना इन चीज़ों पर काबू पाना था, इस डिप्रेशन से निकलना था? बेसिकली डिप्रेशन अगर कहे तो डिप्रेशन तो फर्स्ट डे से ही नहीं था। अगर मैं कहूँ ना कि डिप्रेशन या स्ट्रेस के पता नहीं क्या हो गया, ये चीज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट ही नहीं आई। उस वक्त बस यही था कि यार बचत हो गई है,
अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आगे भी सारा कुछ हो जाएगा। इवन ड्यूरिंग द एम्पुटेशन डॉक्टर के साथ भी जब मैं बात वगैरह कर रहा था, मैं तो यही बात कर रहा था, मैं कोशिश कीजिएगा कि अगर बच सके, इवन डॉक्टर ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से बच सके, लेकिन उन्होंने भी अपनी ट्राई की, नहीं हुआ तो ठीक है, बस जो अल्लाह को मंजूर। बेशक, और फिर अल्लाह हिम्मत देता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस वाला पार्ट नहीं था, मैं अगर उसको वो करूं कि मैं कभी वो आया कि लाइक फील हुआ हल्का हल्का, लाइक वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन या स्ट्रेस के पता नहीं क्या हो गया, एक चीज हो गई है, ठीक है, हो गई है। और ये बड़ी अच्छी बात है माज, आपने बड़ी जल्दी इसको एडमिट कर लिया कि चीज हो गई है और अब इससे निकलना है और क्विकली निकलना है। आपने उस पर टाइम लगाया ही नहीं, हम भी टाइम नहीं लगाते। मैं क्यों ना इनसे रिक्वेस्ट करें हम। हाँ, बिल्कुल, मतलब मेरा तो दिल कर रहा है कि जल्दी से गिटार जाए, मैं देखूं। प्लीज माज, गिटार अगर हो जाए लाइव, गिटार प्ले करूं मैं प्लीज। जी जी जी। वाओ मास, थैंक यू। मैं लिटरली उस वक्त से ये सोच रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है फिंगर का वो जो टच आपने फील करना है, वो फील तो नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। इट इज डिफिकल्ट, इजंट इट माज? बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं भी इवन इन प्रैक्टिस हूँ इसके साथ। तो द थिंग इज के जैसे जैसे नई नई चीजें, कॉर्ड्स वगैरह भी मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नई नई चीजें चल इसके साथ, लाइक क्योंकि अब बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है इसके साथ प्ले करना। तो वो चीजें साथ साथ अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस में आती जा रही हैं चीजें, तो और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह होती जाएंगी। इंशाल्लाह। चलें, ये तो गिटार बजाने की बात होगी ना। बाकी अगर हम चीजों पे चले जाएं, लाइक ड्राइविंग कर रहे हैं आप, और जब जो बाकी दीगर काम है वो भी इतने ही आप इजीली कर पा रहे हैं? बेसिकली काम मैं अगर मेरा अभी तक मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा कोई काम रोका है या मैंने कोई रोका है। मैं सारा कुछ ही जो चीज़ें मैं पहले कर रहा था वो चीज़ें मैं इवन ड्यूरिंग द जो बेसिक चीज़ें थी वो तो मैं इवन फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो गया था। इवन कह लें कि मैं राइटी था, तो राइटिंग का सबसे पहला जो चैलेंज आया था वो तो आया था कि लिखना है। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आया तो इवन नेक्स्ट डे ही आए आस्क्ड माय ब्रदर, बड़े भाई से मैंने कहा कि यार नर्सरी की बुक्स ले आओ। ही वाज लाइक, मैंने कहा यार ABC से स्टार्ट करेंगे।